Good morning, dear students. Today I'm going to start chapter 13 Kumbh Mela in Prayagraj. Children, this is a blog written by Mridula Dwivedi. Children, what is a blog? Children, a blog is a regular updated website or a web page that is usually run by an individual or a small group and is written in an informal or conversational style. It is a type of digital diary. It is used by people to record their thoughts, events, and experiences. And children, in this blog, the writer Mridula Dwivedi is expressing her views, her experiences about Kumbh Mela. And children, this is a blog post about the Kumbh Mela in Prayagraj, which is one of the largest religious gatherings in the world. The writer provides important information about when to visit, how to go, where to stay, and other travel details in this post. She also talks about her experiences at the Mela. So children, now let's come to the chapter. Children, the writer is saying that when I got an invitation from the UP government and Lonely Planet magazine India to visit the Kumbh Mela at Prayagraj, I accepted it without any hesitations. Children, when she gets an invitation from UP government and Lonely Planet magazine India to visit Kumbh Mela at Prayagraj, she accepted it without any hesitation. Means she agrees to go to there. Now I was under the impression that I would never be able to do it on my own, so I was thrilled that I could be part of the media group to visit Kumbh. I am now back from the visit and now I will write many posts. It is easier to start with the nuts and bolts of what to expect at the Kumbh Mela in Prayagraj. Means children, when she gets the invitation, just then she becomes agreed to go there. And after coming back from the Kumbh Mela, she is writing this blog and she is expressing his views, his experiences through this blog, through this post. Children, first she says about the consult of official websites. Children, if you are going to Kumbh Mela, then you will have to consult the website of the official website of Kumbh Mela. It will provide answers to many of your questions. The Mela is held at 4 locations. Means the Kumbh Mela is held at 4 locations. The 4 locations are Nasik, Ujjain, Prayagraj and Haridwar. Okay children. Next, again the writer says about what is Kumbh Mela. Children, she is saying that according to mythology, the origin of Kumbh Mela was transcribed by 18th century philosopher Shankar. The founding myth of the Kumbh Mela points out to the Purnas. Purnas means the compilation of ancient legends. It recounts how gods and demons fought over the sacred pitcher. Pitcher means एक घड़ा, इन हिंदी आप कह सकते हैं घड़ा. दैट इज कॉल्ड कुंभ ऑफ अमृत. अमृत, nectar of immortality, called the Ratna of Samudra Manthan. It is widely believed that Lord Vishnu, disguised as enchantress Mohini, whisked the kumbh out of the grasp of covetous demons who had tried to claim it. As he took it heavenwards, a few drops of precious nectar fell on the 4 sacred sites we know as Haridwar, Ujjain, Nasik and
प्रयागराज। चिल्ड्रन, जो राइटर है आपका क्या नाम है इनका, मृदुला द्विवेदी, वो जब कुंभ मेला में जाती हैं तो वहाँ से लौट के आने के बाद में वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको इस चैप्टर के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से वो अपनी पोस्ट के माध्यम से शेयर कर रही है ना। और वो बता रही हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, वहाँ जाने से पहले क्या करना चाहिए, वहाँ जाकर आपको कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ ठहरना चाहिए, है ना, और कैसे कैसे वहाँ पे जो आपकी यात्रा है उसको मैनेज करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो बताते हैं आपको, सबसे पहले जब अगर वहाँ जाना है तो कुंभ मेला की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जो है विजिट करें, उसके बारे में जानें, जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको वहाँ पे लिखें, उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वो बता रही है कि कुंभ मेला जो है वो कितने जगह पर लगाया जाता है। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में। और इसके बाद वो बता दी कि कुंभ मेला है क्या, कुंभ मेला क्यों लगता है, क्या रीजन है उसके पीछे। एक मिथोलॉजिकल एक व्यू है, उसके बारे में माना जाता है कि एक बार क्या हुआ, द ओरिजिन ऑफ कुंभ मेला वाज ट्रांसक्रिप्टेड बाय 18th सेंचुरी फिलोसोफर शंकर। द फाउंडिंग myth of कुंभ मेला पॉइंट्स आउट द पूर्णास कॉम्पिलेशन ऑफ एंशिएंट लीजेंड्स। मीन्स चिल्ड्रन, एक बार क्या हुआ कि एक बार मतलब युद्ध हुआ, क्या नाम है, देवता और राक्षसों के बीच में। तो देवताओं और राक्षसों के बीच में जब युद्ध हुआ तो राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया। तो हराने के बाद में देवता सारे इकट्ठे होके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो बोलते हैं ठीक है आप लोग हार गए, अब समुद्र मंथन करके कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे कि मतलब देवताओं को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, यानी कि अमृत निकालेंगे। तो सारे देवता जाके राक्षसों से बात करके दोनों लोग एग्री हो जाते हैं और समुद्र मंथन का काम स्टार्ट होता है। और समुद्र मंथन करने पर क्या होता है, एक पिचर निकलता है, पिचर मीन्स घड़ा निकलता है, जिसको कुंभ बोला जाता है। कुंभ किसका होता है, उसमें भरा हुआ क्या रहता है, अमृत भरा हुआ रहता है। क्या रहता है, अमृत भरा हुआ रहता है ना, नेक्टर। अमृत होता क्या है, जिसको पीने के बाद में लोग क्या हो जाते हैं, इमॉर्टल हो जाते हैं, यानी कि अमर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो उसमें निकलता है। अब उसको कौन पिएगा, उसको कौन मतलब कौन यूज करेगा, नेक्टर को पी के कौन अमर बनेगा, इसके लिए देवता और असुर यानी कि राक्षस फिर से लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, भगवान विष्णु जो होते हैं, कई जगह पे बताया गया है कि भगवान विष्णु खुद मोहिनी रूप धारण करके जो उसको लेके आसमान में उड़ जाते हैं, ठीक है ना। और कई जगह पे बताया गया कि भगवान विष्णु के जो पुत्र थे वो उसको लेके उनको इशारा दे देते हैं भगवान विष्णु, तो उसको लेके वो चले जाते हैं। ऐसा कुछ स्टोरी में है। जब उसको लेके वो आसमान में उड़ जाते हैं, मीन्स घड़ा को लेके, यानी कि वो पिक्चर को लेके, अमृत से भरा हुआ है, उसको लेके आसमान में जब उड़ जाते हैं तो उसमें से कुछ क्या निकल जाती हैं, ड्रॉप्स निकलती हैं, यानी कि कुछ जो अमृत होता है वो गिर जाता है, यानी 4 जगह पर, यानी कि उज्जैन, नासिक और प्रयाग, हरिद्वार में, यानी इन 4 जगह पे जो है वो नेक्टर यानी कि अमृत 4 जगह पे गिर जाता है, थोड़ा थोड़ा क्या ड्रॉप्स गिर जाती हैं, कुछ बूंदें गिर जाती हैं। तो क्या होता है, गिर जाने के कारण ही ये जो 4 जगह हैं उन्हीं जगहों पर आज भी कुंभ लगाया जाता है। अब ये 12 साल के बाद लगाया जाता है। तो इसमें भी एक स्टोरी है, जब वो क्या नाम है पिक्चर लेके आसमान में उड़ जाते हैं तो उसके पीछे 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 क्या होता है, असुर भी जाते हैं उसको उनसे छीनने के लिए, यानी कि राक्षस भी जाते हैं। तो राक्षसों के और देवताओं के बीच में फिर से 12 दिन के लिए युद्ध होता है। कितने दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 12 ह्यूमन ईयर, यानी जो देवताओं के डेज थे वो 12 दिन के लिए युद्ध होता है ना, डिवाइन डेज के लिए, 12 डिवाइन डेज के लिए। लेकिन जो देवताओं के 12 डेज होते हैं वो हमारे यानी इंसानों के कितने दिन के बराबर होता है, 12 ईयर्स के बराबर होता है। और इस तरह से देवता और राक्षस कितने दिन तक लड़ते हैं, 12 दिन तक लड़ते हैं, जो कि हमारे लिए वो 12 दिन देवताओं के हमारे लिए कितने दिनों के बराबर है, 12 साल के बराबर, 12 वर्ष के बराबर होते हैं। तो इसी वजह से हर 12 साल के बाद, प्रत्येक 12 साल के बाद में क्या होता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ जहाँ जहाँ ये कुंभ मेला है और उस जगह के आसपास जो नदी हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग रिवर्स आर बिलीव टू हैव टर्न इनटू अमृत, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये अमृत में चेंज हो जाती हैं, है ना, इस टाइम पर आके, जिस टाइम पे कुंभ मेला लगता है।
तो ये कुंभ मेले के बारे में जानकारी थी कि कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है, ऐसा आपके चैप्टर में जो राइटर हैं मृदुला द्विवेदी उनके द्वारा बताया गया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।